Okay, so good morning to everyone. We are actually discussing the topic that is a analytical method validation, and we are around the topic that is the calibration of glasswares and instrumentation. Yesterday we see the few examples of the how we can exactly calibrate the glasswares. So we are seeing the four major glasswares and the procedure for the how exactly we can calibrate. These are the glasswares. So I hope you don't have any doubt with respect to the glasswares. Then we also see that there are different kind of glassware such as glass grade A and grade B, and we also see the tolerance how we can check or find out the tolerance the limit of tolerance for checking the calibration of glasswares. Today we will discuss little bit about what is exactly instrumentation calibration. So each and every instrument ideally have their unique procedure for the calibration. It is not that much difficult because you have the SOP for each and instrument calibration के लिए एक SOP होता है. You just follow that particular SOP and do that particular test, and definitely हर एक टेस्ट तुम लोग को रिपीट करना होगा minimum 3 to 4 times. Then उसका acceptance criteria रहेगा. Then standard deviation रहेगा, correlation of regression रहेगा. These are the some formulas which we are using during the instrumental analysis, and definitely they have set particular limits, and you have to check that whatever we are performing and whatever expected results are, it is the same or match or fit within the limit of that particular instruction. So we see the two example for the calibration, SOP for calibration of UV visible spectroscopy. After that, we will see the calibration for SOP for the calibration of your HPLC, because I feel this is the two major instrument which is we are using maximum purpose for in company and other purpose also. मतलब जैसे कि मैक्सिमम ऐसे अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं जो भी कंपनी में वर्कआउट होता है, उसमें दीज टू इंस्ट्रूमेंट आर मेजरली वर्क. डेफिनेटली जीसी भी होता है, but GC का प्रोसीजर अगर तुम लोग you know the procedure for the HPLC, then definitely it is easy to follow कि exactly GC का प्रोसीजर क्या रहेगा. So each and every instrument का calibration का प्रोसीजर during मतलब practice यहाँ पे लेक्चर में रहना it's not possible, but there are lots of SOPs are available on internet. Each and every instrument का calibration कैसे करते हैं, जैसे कि simple balance का how we will do the calibration for the balance, how can we will do the calibration for sonicator, देन वोटेक्स का कैसे करोगे, ऐसे बहुत सारे हर एक चीज का वहाँ पे SOP दिया हुआ है. And these are the not that much difficult, you just want to read and follow that particular instructions. So we will just revise the two SOPs because definitely after MSc you will definitely work in a company. So at least because इतना मेहनत तो तुम लोग लोगे नहीं कि चलो मैम ने बोला है तो सारे इंस्ट्रूमेंट का इंटरनेट पे जाके SOP रीड करते हैं. ठीक है, अगर मैं बोलूंगी एग्जाम में ये इंस्ट्रूमेंट के शायद SOP के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो you may try to read that particular SOP. Otherwise इतने deeply तुम लोग पढ़ने के लिए नहीं जाओगे. So I prefer कि I just take just read these two SOP and explain you the these two SOP for that is a HPLC and UV, because you actually know कि how exactly we perform the calibration for UV and calibration for the HPLC. So we will start the calibration for the that is nothing but your UV visible spectroscopy. So I have just directly opened the online. I have not copy paste in Word format. So because here काफी अच्छे से दिया है, and I feel कि we can directly read from here. Because I just want to read that particular recipe. There is no need to explain specific term और यहाँ पे से कोई concept नहीं है जहाँ पे मुझे ज़्यादा explanation देना है. I feel any point पे तुम लोग को कुछ doubt रहेगा तो just you can raise your hand. I can explain that particular point. Okay. I hope anybody don't have any doubt with respect to your assignment now, because yesterday I hope we discussed the few points with respect to your assignment. So अभी भी किसी को कुछ doubt है तो पहले I just solve that particular doubt and then start the lecture, because फिर then I feel कि तुम लोग message आते हैं कि ma'am we have some doubt with respect to the assignment. So do you have any doubt with respect to the assignment? If no, then just write the no. Anybody can write no if you don't have any doubt with respect to your assignment. Nobody is writing. Okay, so I assume that there is no doubt with respect to your assignment. There is one more announcement I want to do before start the SOP reading. That is definitely I have to perform one test for you. That is a surprise test, like to, because we already completed almost 2 units. So basically, I will start the test for
दिस पर्टिकुलर यूनिट दैट इज एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन के ऊपर रहेगा. नेक्स्ट वीक में रहेगा. मे बी इट्स ऑन आज को थर्सडे, तो वी विल डिसाइड टू नेक्स्ट थर्सडे. ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे वी विल टेक द टेस्ट. सो यू हैव द कंप्लीट 1 week टाइम, 7 days टाइम टू रीड. ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होगा, because we have discussed each and every point in detail. Definitely today I will send all the material with respect to this particular unit. Please start reading this particular unit, and we will perform the test on Thursday. Okay. Okay, so let's continue the SOP reading. Okay, so this is the SOP for your calibration of SOP for the calibration of UV visible spectroscopy. So these are the actually the way SOP write, that is the objective. That means why, what is the exactly objective of writing this particular SOP, to describe the procedure of calibration of SOP. Why I'm reading this particular points, because you know how to write the SOP, because this is also the one assignment, और you can say अभी तुम लोग का एक टॉपिक रहेगा जिसके अंदर तुम लोग को each and every instrument हम लोग डिवाइड करते हैं इंस्ट्रूमेंट, and you have to write the SOP for that particular instrument. So you should know ki how exactly we are write the SOP and what is the format to write the SOP. So first, for that is nothing but the objective of that is why we are writing this particular SOP, to describe the procedure for calibration of UV visible spectrometer. Scope: this SOP is applicable for the calibration of UV visible spectrometer. Responsibility: officers, executive and quality control. यहाँ पे जो particular person is responsible for that particular मतलब कैलिब्रेशन करने के लिए, सो डेफिनेटली द मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, से क्वालिटी कंट्रोल के मैनेजर होते हैं, दे आर कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल कि जो भी बंदा कैलिब्रेशन कर रहा है वो प्रॉपरली कराएगा. उसमें कुछ भी मिस्टेक्स रहेंगे तो ऑडिट के टाइम पे गला किसका पकड़ा जाएगा? दैट इज नथिंग बट द मैनेजर. सो ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द sorry, calibration of this particular SOP. Then accountability, that is the manager, quality control, इसके बाद सारे documentation रहेगा. Let's move to the actual procedure of your calibration of UV visible spectroscopy. So basically UV visible spectroscopy calibration is divided into the 4 sections. That is, calibration of UV visible spectroscopy is done in 4 steps. First, that is the control of wavelength. Next, absorbance of wavelength. Next is limit for the stay light, and next is the resolution power. The operate the instrument as per the SOP. Okay. Who decided कि exactly SOP के अंदर या फिर when we are performing the calibration exactly कौन से point decide करने हैं, कौन से point पे तुम लोग को calibration करना है. So these all procedures of your standardization, sorry, calibration of instrument is already mentioned in your pharmacopoeia. So you can refer pharmacopoeia for calibration of any instrument. Each instrument का जो भी instrument we are using for quality control analysis के लिए use करते हैं, तो वो हर एक इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करने का प्रोसीजर फार्माकोपिया में मेंशन है. तो बेस्ड ऑन दैट प्रोसीजर यू कैन प्रिपेयर योर, वहाँ पे एसओपी नहीं दिया है, दे आर गिविंग द प्रोसीजर. सो यू हैव टू प्रिपेयर द एसओपी एज पर योर गाइडलाइन. ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो भी पॉइंट्स कंसेप्ट रहेंगे वो सेम रहेंगे. सो आइडियली यू विजिबल का अगर तुम लोग को कैलिब्रेशन करना है तो उसके 4 सेक्शन है. सो वी विल डिस्कस फर्स्ट सेक्शन, दैट इज द कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ. तो उसमें क्या है, वेट एक्यूरेटली 0.1 ग्राम ऑफ holmium oxide and dissolve it into 1.4 molar of perchloric acid solution. Make up to the 25 ml of same solvent. अभी इतना ही क्यों लेना है, इतने मोलार में क्यों डिसाइड करना है, ये सारी चीजें based on your pharmacopoeia, because they have set up some particular guideline to get the accurate reading. So ये सारे प्रोसीजर इसमें मेंशन है. होलियम ऑक्साइड इज अर्थ मेटल का कोई तो ये ऑक्साइड होता है. इट इज वेरी कॉस्टली एक्चुअली, जनरली सारी जगह पे अवेलेबल नहीं होता, बिकॉज व्हेन वी आर परफॉर्मिंग आवर कंपनी, जब हम लोग कैलिब्रेशन करते थे तो स्पेशली ये पर्टिकुलर टेस्ट के लिए हम लोग आउटसोर्स करते थे कि वहां से कोई बंदा होलियम ऑक्साइड लेके आता था, ये पर्टिकुलर टेस्ट करता था कि the instrument is that is कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ के लिए पास होता है या फेल होता है, बिकॉज वी डोंट हैव एक्चुअली दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड. इवन इन आवर कॉलेज आल्सो वी कैन इजीली परफॉर्म द कैलिब्रेशन ऑफ यूवी विजिबल, बिकॉज बाकी सारे रिएजेंट इसमें कुछ नहीं यूज होता. मेजरली तुम लोग का पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज होता है. ओनली होलियम ऑक्साइड इज नॉट विथ अस बिकॉज इट इज अ कॉस्टली स्टैंडर्ड. सो 0.1 ग्राम लेना है, 1.4 मोलार पर क्लोरिक एसिड में उसको डिसॉल्व करना है, इसको अप टू द मार्क 25 ml के सॉल्वेंट में मेकअप करना है. Select the method file, that is the control of wavelength in the instrument. That is nothing but ये इंस्ट्रूमेंट के उनके सॉफ्टवेयर के गाइडलाइंस रहेंगे. After selecting the file, press the
reference button to baseline correction, then fill the cuvette with 1.4 molar perchloric acid, put into the sample crucible and press the reference to 0. After auto 0, put the Oleum perchlorate solution in the same cubicle, and then press start key. Scan it and verify the wavelength using the absorbance maxima of Oleum perchloride solution to permitted the given tolerance limit. तो इसमें exactly explain क्या किया है solution, ये तुम लोग को पता चला होगा कि how exactly we are preparing solution. Then this is a simple procedure that we check the wavelength. ठीक है, तो एग्जैक्टली हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग दोनों जगह पे अपने इंस्ट्रूमेंट में, इट इज अ ड्यूअल इंस्ट्रूमेंट, तो बोथ जगह पे अभी जस्ट ध्यान में रखना अपना यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो ब्लैंक एंड सैंपल दोनों की जगह पे तुम लोग को क्या रखना है, क्यूएट के अंदर ब्लैंक सोल्यूशन. तो ब्लैंक सोल्यूशन क्या रहेगा तुम लोग का, दैट इज 1.4 मोलर परक्लोरिक एसिड, दैट इज योर ब्लैंक, बिकॉज इसके अंदर तुम लोग ने सैंपल स्टैंडर्ड डिजोल्व किया है. देन यू विल डेफिनेटली मेक ऑटो जीरो. ठीक है, जब भी हम लोग को स्पेक्ट्रम मोड पे जाना होता है, सॉरी, we will do the baseline correction and auto zero करते हैं. ठीक है, so here we will do the baseline correction because here we are using the spectrum mode. तो पहले हम लोग baseline correction करेंगे, फिर दोनों के जगह ब्लैंक रख के, then जहाँ पे सैंपल क्यूएट है वहाँ पे हम लोग कौन सा सॉल्यूशन रखेंगे, दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दैट इज अ सैंपल व्हिच वी प्रिपेयर 1 ग्राम लेके जो रिजॉल्व किया है, एंड स्कैन द सैंपल एट द डिफरेंट पर्टिकुलर वेवलेंथ. ठीक है, तो जब सॉल्यूशन तुम लोग रखते हो तो तुम लोग को मैक्सिमा वेवलेंथ देखना है, मतलब तुम लोग को एक्चुअली जो पीक्स आते हैं, ये 4 पीक के अंदर तुम लोग को पीक्स मिलने चाहिए. दैट इज 241 में उसका मैक्सिमम आता है, नेक्स्ट 287 पे उसका मैक्सिमम आता है, 261.5 पे आता है, 236, मतलब व्हेन यू रन यू स्कैन द सैंपल यू विल गेट द 4 पीक. ठीक है, जनरली हम लोग स्टैंडर्ड रन करते हैं, वी आर आइडियली गेटिंग द सिंगल पीक, और sometimes may get a two peak, because मैंने बोला कि whatever standard we are using, it is not a reference standard. ठीक है, it is a reference material, तो वो 100% प्योर नहीं होता है, it is closely related to your reference standard. so इसीलिए हम लोग को maximum times पे प्योर पिक्स नहीं मिलते हैं, आइडियली स्टैंडर्ड का सिंगल पिक ही आता है, प्योर पिक. तो जब तुम लोग ये होलियम ऑक्साइड रन करोगे तो तुम लोग को ये 4 पिक्स मिलने चाहिए, एंड हर एक पोर्ट, जैसे हम लोग उसके बाद याद है स्पेक्ट्रम मोड पे करने के बाद वी जस्ट ऐड ऑन पीक पीक, तो उसके नीचे एक पीक का टेबल आता है, जितने भी पीक्स है उस हर एक पीक के ऊपर उसका मैक्सिमम लैम्बडा मैक्स पता चलता है. तो जब तुम लोग स्पेक्ट्रम स्कैन करोगे फॉर 200 से लेकर 900 तक, या फिर 600 तक करो, 700 तक करोगे, उसके बाद, बिकॉज यहाँ पे 700 इसलिए बोला है बिकॉज 200 to 400 इज यूर यूवी, एंड 400 से 700 तक तुम लोग का विजिबल रेंज है. तो 800 तक करोगे या फिर 700 तक करोगे तो भी इनफ है, बिकॉज वॉट एवर वेवलेंथ वी वांट टू सिलेक्ट, दैट इज द लास्ट इज 536. ईच वेवलेंथ पे मतलब हम लोग को रन करने के बाद वी आर गेटिंग द 4 पिक्स. हर एक पीक का एक्चुअली इतना मैक्सिमम आना चाहिए, मतलब फर्स्ट पिक शुड बी द 241 पे आना चाहिए, सेकंड पिक 287 पे आना चाहिए, थर्ड पिक 361 पे होना चाहिए, एंड फोर्थ पिक 536 पे आना चाहिए. इफ ये नहीं आया तो द पिक शुड बी द फॉल इन द दिस पर्टिकुलर लिमिट, मतलब उसका ये टॉलरेंस लिमिट है. अगर आउट ऑफ रेंज जाता है, दैट मीन्स यूर कैलिब्रेशन इज फेल फॉर द कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ के टेस्ट के लिए वो फेल होता है. इफ यूर मतलब जो भी टेस्ट है इट इज अ पास, मतलब जो भी रीडिंग है विद इन द दिस पर्टिकुलर रेंज में है, देन डेफिनेटली योर इंस्ट्रूमेंट इज पास फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट. तो कुछ नहीं है, सिंपल है, क्या करना है, सिर्फ सॉल्यूशन बन के एब्जॉर्बेंस लेना है. नेक्स्ट, इट इज अ प्रोसीजर तो सेम बट कंसेप्ट इज डिफरेंट, दैट इज अ कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस. दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया. So dry quantity of potassium dichromate by heating at the constant weight of 130 degrees Celsius. Actually, I was forget in yesterday's lecture when yesterday और उसके पहले लेक्चर में जब हम लोग मेथड ट्रांसफर कर रहे थे और मैंने बोला कि आई वाज प्रिपेयरिंग द K2 CR207. ठीक है, जब भी whenever we are preparing the standards या फिर मतलब स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कोई भी चीज रखते हैं, तो जो भी तुम लोग सॉल्ट्स यूज करते हो इट शुड बी द कम्प्लीटली ड्राई फॉर्म. तो जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है, सो डेफिनेटली यू कीप इट इनटू द ओवन एट 130 डिग्री सेल्सियस पे, कंप्लीटली उसको ड्राई करना है 2 to 3 आवर्स. यहाँ पे लिखा है हीटिंग टू द कांस्टेंट वेट. इसका मीनिंग क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में एक पेट्री प्लेट में रख के तुम लोग हीट के लिए रखोगे 1 घंटे, मतलब 1 आवर के बाद यू बिफोर, जैसे कि पेट्री प्लेट से कि हम लोग एलओडी करते हैं, पेट्री प्लेट लगते हैं, उसका वेट लेते हैं, आफ्टर पहले वेट लोगे, आफ्टर वेट लोगे, आफ्टर वेट लेने के बाद कुछ भी जो भी मॉइस्चर होगा वो रिमूव हो जाएगा. तो इमेजिन करो स्टार्टिंग में तुम लोग का वेट था 45.726,
ठीक है। उसके बाद एक मतलब फर्स्ट आवर के बाद तुम लोग का वेट हुआ 44.982, ठीक है। सो जो भी मॉइस्चर था वो रिमूव हो गया। फिर और 1 घंटे के या फिर आधे घंटे के लिए तुम लोग प्लेट को रखोगे। उसके बाद तुम लोग का वेट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, इट इज 44.9 जो कुछ भी मैंने वेट बोला 926 वगैरह। सो इट शुड बी कांस्टेंट। जब तक कांस्टेंट वेट नहीं है तो तुम लोग को सैंपल को हीट करना है, दैट इज कम्प्लीटली मॉइस्चर और वोलेटाइल कंटेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर आने तक वेट करना है। Then accurately weight 60 milligram of dried potassium dichromate, dissolve it into the 0.005 molar sulfuric acid solution, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड जब तुम लोग बनाओगे तो उसका एक्चुअली मोलारिटी यू हैव टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली 0.005 मोलर है या नहीं बाय द स्टैंडर्डाइजेशन मेथड से। तुम लोग मतलब पहले बनाओगे, उसके बाद उसका बैक टाइट्रेशन करोगे। अभी एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड तो उसका बैक टाइट्रेशन होगा NaOH और KOH के साथ, एंड यू विल एक्चुअली फाइंड आउट कि उसका मोलारिटी कितना है। देन मेकअप सॉरी इसको डिजोल्व करोगे, मतलब क्या है 60 इसको then dissolve in 0.05 molar sulfuric acid solution, make up the 1000 ml of the same solvent, that is your solution A। ध्यान में रखो इसके अंदर हम लोग एक ही चीज यूज करें लेकिन solution A and solution B is different है। Next, weight accurately 60 milligram of dipotassium dichromate, dissolve into the 0.05 molar sulfuric acid and make up to the 100 ml। First solution A में we are dissolve it into the 1000 ml and B में हम लोग 100 ml में dissolve करते हैं। तो ये दो solutions prepare हो गए। Then select the method control of absorption in the instrument। पहले हम लोग ने spectrum mode पे किया था, now we will go for the absorption, that is the quantitative के लिए। And after selecting the pressure reference, that is the baseline correction हम लोग करेंगे, ठीक है। बेसलाइन दैट इज नथिंग बट यू परफॉर्म द दैट इज बेसलाइन जो भी है। दोनों टायर पे हम लोग ब्लैंक सैंपल रखोगे। अभी ब्लैंक में क्या रखोगे, तो डेफिनेटली 0.05 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज उसके अंदर तुम लोग ने स्टैंडर्ड डिसॉल्व किया। एम आई गोइंग फास्ट? आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट। इज इट ओके ना? जो भी हम लोग रीड करें समझ में आ रहा है ना? यस मैम क्लियर। ओके। सो देन हम दोनों जगह पे ब्लैंक रखेंगे। ब्लैंक रखने के बाद ऑटो 0 पे 0 रीडिंग्स होना चाहिए। देन वी विल कीप आवर सॉल्यूशंस, दैट इज कि अभी यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग को क्या करना है, ईच सैंपल का पहले बेटर आई विल रीड देन वी विल शो यू। Then select the method file, that is the control absorbance in the instrument. After selecting the file, press reference button to baseline correction, that is nothing but the auto 0. Fill the cuvette with the 0.05 molar sulfuric acid as a blank and put the sample in crucible and press the reference as a 0. After auto 0, put the potassium dichromate label solution A in the sample cubicle and press the start key, the absorbance at the first 4 wavelength mentioned in the table. Now take the absorbance at 430 nanometer solution B। मतलब ये जो 4 वेवलेंथ है, ये 4 मतलब 235, 257, 313 एंड 350, ये चारों वेवलेंथ पे तुम लोग को सॉल्यूशन ए दैट इज 1000 ml में हम लोग ने डिसॉल्व किया है, उसका एब्जॉर्बेंस लेना है। एंड उसके बाद 433 पे तुम लोग का उसका एब्जॉर्बेंस लेना है। तो देन जो भी उसका एब्जॉर्बेंस आएगा, तो दीज आर द एक्सपेक्टेड, मतलब ये उनके रिजल्ट है ड्यूरिंग आफ्टर एब्जॉर्प्शन। एंड दिस इज द मैक्सिमम टॉलरेंस, दैट मीन्स जो कुछ भी एब्जॉर्बेंस तुम लोग का आ रहा है वो ये रेंज में बैठना चाहिए। अगर वो रेंज में इसके एब्जॉर्बेंस बैठ रहे हैं देन डेफिनेटली यूर क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट इज पास फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट, ठीक है। सो आई होप दिस इज अ क्लियर फॉर द सेकंड, दैट इज फर्स्ट में हम लोग ने स्पेक्ट्रम मोड में देखा, सेकंड में हम लोग ने एब्जॉर्बेंस मोड में देखा। लिमिट फॉर द स्टे लाइट, आई होप एवरीबडी नो व्हाट इज द स्टे लाइट। स्टे लाइट इज नथिंग बट द अपार्ट फ्रॉम योर ओरिजिनल लाइट जो बल्ब में से आता है विच इज वी आर यूजिंग फॉर मेजरिंग पर्पज एब्जॉर्बेंस, उसके सिवा आजू बाजू में अगर कोई लाइट है रिफ्लेक्ट हो रही है बल्ब में से कोई लाइट या फिर एनवायरमेंट से कोई लाइट अब तुम्हारे अंदर इंस्ट्रूमेंट में जहाँ पे इट मे अफेक्ट योर सैंपल। सो अपार्ट फ्रॉम योर एब्जॉर्बेंस लाइट जो बाकी की लाइट होती है दैट इज स्टे लाइट, तो वो एक्चुअली स्टे लाइट नहीं होना चाहिए, सो इट इज नॉट गुड। तो एग्जैक्टली कितना स्टे लाइट आ रहा है, इट शुड बी विद इन द लिमिट और नहीं, वो चेक करने के लिए दिस इज द पर्टिकुलर टेस्ट। So dry the quantity of potassium dichromate by heating, same procedure is a 130 पे. Then weight accurately 1.20 gram of dry potassium potassium chloride and dissolve it into the 50 ml of distilled water. Here we are using distilled water and make up the 100 ml with the same solvent.
देन सिलेक्ट द मोड दैट इज द लिमिट ऑफ स्टे लाइट इन द इंस्ट्रूमेंट. ये अपना जो मेथड होता है व्हेन वी आर सिलेक्टिंग दैट इज मेजरली हम लोग 4 यूज करते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड अपने पास और 4 है जो हम लोग यूज करते हैं. अपार्ट फ्रॉम अगर तुम लोग को मेजर में जाओगे यानी इंस्ट्रूमेंट सेटअप में जाओगे तो यहाँ पे वो होता है फाइल में लिमिट फॉर द स्टे लाइट, तो उसके ऊपर तुम लोग क्लिक करोगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगा. देन यू कैन start the performing in that particular software. So after selecting the file, press the reference button to baseline correction. Definitely auto zero करोगे. Check the absorbance above solution using water as a blank at 200 nanometer. मतलब इसका 200 nanometer पे तुम लोग रीडिंग लोगे. The absorbance should not be the greater than 2. ठीक है, so 2 से ज़्यादा उसका absorbance नहीं आना चाहिए. So that is nothing but your अगर ज़्यादा आता है then your instrument will fail for the stay light. रिजोल्यूशन पावर, तो उसके लिए तुम लोग को व्हाट इज रिजोल्यूशन पावर, जो भी तुम लोग के पीक्स आते हैं उसमें प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए. सो द टेस्ट फॉर द रिजोल्यूशन पावर के लिए है दैट इज अ प्रिपेयर 0.02% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ टोल्यूइन इन 1 हेक्सेन का प्रिपेयर करना है. तो 0.02%, सो 10 ml के लिए भी बना सकते हो. यू डज नॉट रिक्वायर कि परसेंट में तो 100 ml के लिए बनाओ. सिलेक्ट द मेथड फाइल दैट इज द रिजोल्यूशन पावर इन द सेम इंस्ट्रूमेंट. सेम जैसे मैंने बोला मेजर में जाके जैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं एजर एब्जॉर्बेंस और ये वैसे ही तुम लोग को सिलेक्ट करना है रिजोल्यूशन पावर. आफ्टर सिलेक्टिंग द फाइल प्रेस रेफरेंस बटन फॉर बेसलाइन करेक्शन. डेफिनेटली पहले हम लोग बेसलाइन करेक्शन करते हैं. then measure the absorbance of above the solution at 266 and 269. मतलब पहला तुम लोग लोगे 266 पे उसका absorbance लोगे, सेकेंड रीडिंग लोगे 269 पे. using hexane as a UV blank solution because hexane में तुम लोग ने बनाया है. then the ratio of the absorbance maxima at 269 to 66 minima should be the greater than the 1.5. मीन्स व्हाट, जैसे कि इमेजिन करो 269 पे तुम लोग का एब्जॉर्बेंस आता है 1.820, तो सेकंड पे आ रहा है 269 पे मैक्सिमम. व्हाट इज मैक्सिमा, किधर है 269 पे मैक्सिमा है, तो इमेजिन करो 269 पे सपोज एब्जॉर्बेंस आता है 0.860, 266 पे आएगा सपोज 0.620, तो 0.8 डिवाइड बाय 0.6 करोगे तो जो भी तुम लोग का उसका रेशियो आएगा इट शुड बी द मोर देन 1.5%. मतलब 0.6 डिवाइड बाय 0.2 करोगे तो जो कुछ भी तुम लोग का रीडिंग आएगा वो मोर देन 1.5% होना चाहिए. then only you can pass for the resolution power. note down the report of the internal calibration certificate and instrument logbook. ठीक है, so ये सारे टेस्ट, these are the only 4 tests which we are performing for the UV के लिए calibration के लिए होते हैं. so ये रिजल्ट्स अगर आते हैं प्रॉपर्ली then your instrument is a properly working condition. then उसके बाद उसका एक सर्टिफिकेट का फॉर्म होता है. I actually searching for the format for writing the results and उसका, लेकिन मुझे इसका नहीं मिला. I get for the HPLC के लिए मुझे मिला था. I can okay I can show when I can अभी भी मैं तुम लोग को शो कर सकती हूँ कि exactly format कैसे होता है. just one second, I just share the new screen. okay, hold for a second. तो ऐसे टाइप में ना उसका फॉर्मेट होता है जिसमें टैबुलर फॉर्म में तुम लोग को रीडिंग लिखना होता है. दिस इज फॉर एचपीएलसी. जैसे कि अभी ये फ्लो रेट का है तो इन पहले सारे इंस्ट्रूमेंट का कौन से पार्ट का तुम लोग यूज कर रहे हो तो वो पार्ट का वहाँ पे मेंशन होता है नेम, दैट इज अ मोबाइल फेज वगैरह भी, ये सारा सीबीएस के लिए. देन इंस्ट्रूमेंट नंबर, पंप वगैरह. एंड यहाँ पे तुम लोग को जो भी तुम लोग रीडिंग्स ले रहे हो वो रीडिंग्स यहाँ पे मेंशन करना होता है. उसका सब कुछ लिखा होता है. रीडिंग्स मेंशन करने के बाद व्हाट इज द लिमिट, इट इज द फ्लो रेट लिमिट, पास एंड फेल. एंड यहाँ पे जिसने परफॉर्म किया उसका सिग्नेचर एंड यहाँ पे डेट होता है. नीचे मैनेजर का सिग्नेचर होता है एंड डेट होता है. तो ऐसे उसका एक फॉर्मेट होता है व्हेन यू आर एक्चुअली टेकिंग द रीडिंग. मतलब जैसे तुम लोग का एग्जाम के लिए उसी के ऊपर आंसर लिखने वाला क्वेश्चन पेपर बचपन में मिलता था ना, वैसे फॉर्म में उसका एक फॉर्मेट होता है जिसके ऊपर तुम लोग को वैल्यूज फिलअप करके पास और फेल के लिए यूज करना होता है. So this is the procedure which we are. This is the how. This is the way we perform the calibration of your UV spectroscopy. Anybody is having any doubt in this?
particular PPT, SOP. I hope you don't have doubt. So it is a simple, ऐसे ही सारे SOPs होते हैं जिसमें सारे सिपरी तुम लोग को दिया हुआ होता है कि exactly how you will perform, लेकिन you have to perform it very accurately, then only तुम लोग को results मिलता है. मतलब पढ़ने के लिए से मैंने बोला कि it's very simple, सिर्फ absorbance लेना है. Ideally UV में इतना difficult नहीं जाता है when you are actually calibrating the instrument. मतलब when I was performing the calibration of the instrument, majorly I get the problem with your balance. It is really very tough to pass your balance. मतलब definitely because जैसे problem ऐसा होता है कि industry purpose में when we are using balance very roughly because uh, if you say every 5 minutes के बाद we are continuously using the balance. That means the more than 50 to 60 people are working in a one industry and suppose you have 2 to 3 balance, so we are actually in a queue कि तुम्हारा वे होने के बाद मुझे वे करना है. एंड डेफिनेटली करते वक्त कितना भी केयर करो, कितना ही सॉफ्टली हैंडल करो, थोड़ा बहुत तो तुम लोग के क्या बोलते हैं केमिकल्स यहाँ वहाँ बैलेंस के ऊपर गिरते हैं, तो वो अगर हाइड्रोस्कोपिक रहेंगे तो वो स्टिकी होते हैं. एंड समटाइम्स वी क्लीन द बैलेंस बिफोर वी गो द होम, समटाइम्स वी बिकॉज ये कैसे होता है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिविंग टू द पर्टिकुलर पर्सन की आज तुम लोग को जाने से पहले ये पर्टिकुलर पर्सन को बैलेंस क्लीन करना है, तो उसने प्रॉपर नहीं किया है, किया उसके ऊपर डिपेंड होता है कि मॉर्निंग में आके तुम लोग सिंगल छोटा कैलिब्रेशन करते हो. एंड मंथली कैलिब्रेशन होते हैं, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं एंड समटाइम्स यूर वेट में बी द फ्लक्चुएटिंग. अगर बैलेंस बहुत पुराना है तो उसको एक्चुअली उस क्राइटेरिया में फिट करना बहुत डिफिकल्ट जाता है. UV is not that much difficult. So we will move for the second procedure for the calibration, that is nothing but the calibration for your HPLC. I hope I'm on the correct page. Okay, so we will start because 8 minutes are still pending. So at least we can complete because HPLC में there are 2 to 5 more than 5 to 6 tests which we are performing for the calibration. And this is very important because तुम लोग in deeply HPLC सीखते हो तो definitely कंपनी में जाने के सबसे पहले क्वेश्चन आता है कैलिब्रेशन किया है नहीं. तो डेफिनेटली तुम बोल सकते कैलिब्रेशन किया तो नहीं, बट एटलीस्ट यू नो हाउ टू डू द कैलिब्रेशन. इतना भी तुम लोग ने बताया या फिर पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में बताया कि व्हाट इज द पंप का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं वगैरह. देन इट इज अ वेरी क्या बोलते हैं इफेक्ट काफी अच्छा पड़ेगा कि एटलीस्ट यू नो दिस चीजें तुम लोग को पता है करके काफी अच्छा रहेगा. दैट्स व्हाई आई सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर. Okay, so we will continue. So I don't read that objective, scope, and responsibility because you know very well about what exactly the point are that. So we will directly move for the procedure. So HPLC के procedure में there are number of points we are starting to calibrating. We are started with the pump. रिजर्वायर हम लोग कैलिब्रेट नहीं करते. एटलीस्ट रिजर्वायर में कैलिब्रेशन करने ऐसा कुछ नहीं. रिजर्वायर इज नथिंग बट योर ग्लास बॉटल्स जिसके अंदर तुम लोग के सॉल्यूशन यूज करते हो. रिजर्वायर के आगे आता है पंप, जो रिजर्वायर से तुम लोग के सॉल्यूशन को सक करके इट्स फ्लोइंग टू योर द कॉलम विद अंडर द हाई प्रेशर. तो जो भी प्रेशर हम लोग देते हैं वो उतने प्रेशर के लिए वो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली कॉलम में उतने प्रेशर में पास होना चाहिए. सब चेक करने के लिए वी आर कैलिब्रेटिंग द पंप. So how exactly we are calibrating the pump? We will read the procedure for the pump. So set the flow rate at 1 ml per minute. मतलब क्या है, तुम लोग flow rate set करोगे. Connect the resistor tubing that 2 meter 0.1 mm ID. It placed in the column. It is nothing but it's a specific type of column we are using when we are. It is a जैसे column जैसा ही होता है. So it is a tube which we are connecting with जहाँ पे हम लोग column रखते हैं. ठीक है. Then start the pump. स्टार्ट करोगे, पंप होने के बाद वेट टिल द इक्विपमेंट इज स्टेबलाइज एंड बेस लाइन इज अचीव. डेफिनेटली जैसे ही स्टार्ट करोगे डायरेक्टली तुम लोग को स्टेबल लाइन नहीं मिलेगा. तुम लोग का कॉलम पहले वेट होगा, वेट होने के बाद उसको थोड़ा स्मूथली लेस होने के लिए ज्यादा टाइम जाएगा. तो जब तक बेस लाइन स्टेट नहीं आते तब तक तुम लोग को वेट करना है. मिनिमम 20 to 25 मिनट्स जाते हैं टू मेक योर बेस लाइन स्टेट. देन स्टार्ट द पंप एंड वेट टिल द इक्विपमेंट इज सॉरी पंप स्टार्ट करने के बाद वी विल वेट करोगे. देन wait the dry empty A grade measuring cylinder. Note that wait dry empty A grade measuring cylinder. Wait and accurate for the same. Then collect the water from the outlet of the resistor tubing for 5 minutes and wait the measure cylinder and record the value. Repeat the step for 6 6 to 5 and continue the procedure for the 4 repetition and calculate the flow rate. अभी इसमें exactly हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मेंशन किया है
अभी फ्लो रेट तुम लोग ने बोला है 1 ml/मिनट। इसका मीनिंग क्या है कि 1 मिनट में तुम्हारे कॉलम में से जाकर नीचे आने तक 1 ml सॉल्यूशन आएगा। तो जैसे कि तुम लोग स्टॉप वॉच का बटन दबाओगे स्टार्ट एंड 1 मिनट के लिए तुम लोग मतलब सॉल्यूशन उस ट्यूब में जैसे आउटलेट में कलेक्ट करोगे तो आइडियली 1 ml आना चाहिए। 5 मिनट के बाद कलेक्ट करोगे तो तुम लोग का सॉल्यूशन कितना होना चाहिए 5 ml। तो 5 ml का अगर वाटर का डेंसिटी 1 है तो 5 ml का वेट कितना होना चाहिए almost near about 5, that is a 5.1 or 5, 4.9, 5.2 वगैरह उसका इतना वेट होना चाहिए। Few companies are actually measuring the weight or few companies are directly just measuring the volume, that is a 5 ml RNA. So different time zone पे हम लोग लेते हैं, 2 मिनट्स के लिए लेते हैं, 4 मिनट्स के लिए लेते हैं, 5 मिनट्स के लिए लेते हैं, 8 मिनट्स के लिए लेते हैं, 10। अभी यहाँ पे जैसे बोला है 6, 2 एंड 5 मतलब 6 मिनट, 2 मिनट एंड 5 मिनट्स। हर एक के लिए तुम लोग को 4 रिपीटेडली लेना है, मतलब 6 मिनट जैसे कि स्टार्ट किया स्टॉप वॉच 6 मिनट के लिए लिया, ठीक है। उसके बाद 2-3 मिनट बीच में गैप रहेगा, फिर से यू विल स्टार्ट एंड स्टॉप वॉच, फिर से कलेक्ट करोगे न्यू टेस्ट ट्यूब जिसका रहेगा, फिर से कलेक्ट करोगे 6 मिनट के लिए, ऐसे 4 टाइम्स करोगे। सेम 2 ml के लिए करोगे, सेम 5 ml के लिए करोगे, ठीक है। उसके बाद उसका वेट तुम लोग चेक करोगे, अगर 5 ml के लिए वेट 5 आता है वाटर का, देन उसका फिर तुम लोग अगर जो भी वेट आता है मतलब उसका तुम लोग मीन निकालते हो, दैट इज 5.1, 4.9, 5.2, 5.0 जो कुछ भी फोर्थ वॉल्यूम आएगा, देन यू विल राइट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों फैक्टर्स हम लोग निकालते हैं। एंड उसके बाद उसका क्या होता है लिमिट एंड टॉलरेंस, जैसे कि अगर यहाँ पे फ्लो रेट का है देन आई कैन शो यू। ओके सी pump flow rate check, ठीक है। The instrument setup procedure, mobile phase is water, other equipment that is a dry 10.1 ml volumetric flask or flow meter, ठीक है। इट इज अ जैसे कि 10 ml का लेना है तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या फिर तुम लोग मेजरिंग सिलेंडर भी ले सकते हो और 10 ml का ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो। So 3 flow rate check should be the performed during the pump system। अभी यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है 0.5 ml, 1 ml एंड 2 ml पर मिनट। मतलब क्या है कि पहले तुम लोग फ्लो रेट के लिए रखोगे, वहां पे सिर्फ 1 ml/मिनट लिखा था, सबसे पहले तुम लोग सेट करोगे 0.5 ml/मिनट। उसके बाद उसके तुम लोग 4 रीडिंग लोगे, इमेजिन करो 5 ml के लिए लिए। उसके बाद 0.5 पे लिए तुम लोग रीडिंग लोगे 2 ml के लिए, 0.5 फ्लो रेट रख के तुम लोग रीडिंग लोगे 6 ml के लिए। सेम वे वी चेंज नाउ द 1 ml/मिनट। उसके भी तुम लोग टोटल 3 वेज में रीडिंग लोगे, 5 ml के लिए, 10 ml के लिए, एंड जनरली कंपनी में हम लोग 2 ml के लिए, 5 ml के लिए एंड 10 ml के लिए लेते थे। देन नेक्स्ट दैट इज अ टू मैक्सिमम फ्लो होता है इसे, पर आइडियली सारे इंस्ट्रूमेंट पे मैक्सिमम फ्लो पर मिनट का लिमिट 2 होता है। कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट पे 5 ml और 10 ml भी होता है, लेकिन आइडियली होता है वो 2 ml के लिए। इट इज द हाईएस्ट फ्लो, इससे ज्यादा फ्लो तुम लोग नहीं दे सकते। उसके बाद अभी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर, पंप मेक एंड मॉडल, पंप सीरियल नंबर, जो कुछ भी उसका इंफॉर्मेशन था। देन फ्लो रेट फर्स्ट जो भी तुम लोग ने रखा है, जैसे कि 0.5 ml यहाँ पे आएगा, 1 ml यहाँ पे आएगा, 3 ml फर्स्ट वॉल्यूम एंड उसका टाइप, एंड उसके बाद उसके रीडिंग्स आएगा। आइडियली तुम लोग के 5 रीडिंग्स होते हैं, उसका मीन आएगा। एंड अभी जैसे यहाँ पे लिमिट है, जब अगर 1 है तो 0.052 ये इसका रेशियो और लिमिट है, मतलब 0.5 ml वॉल्यूम आगे पीछे तुम लोग का चलेगा। देन यहाँ पे आएगा पास और फेल, सिग्नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैनेजर एंड डेट। सो दिस इज फॉर द कैलिब्रेशन फॉर द फ्लो रेट। तो इमेजिन करो कि एक ही टेस्ट करने के लिए तुम लोग का ऑलमोस्ट 3, मतलब जस्ट फ्लो रेट चेक करने के लिए तुम लोग का ऑलमोस्ट 1 और 1.5 आवर तो चला ही जाता है, बिकॉज 5 मिनट्स के लिए तुम लोग करते हो, ऐसे तुम लोग 15 मतलब मिनिमम, बिकॉज each flow there are 3 flow and हर एक के तुम लोग 5 to 4 टाइम्स रिपीटेडली करते हो। तो जनरली मतलब जब मैं कैलिब्रेशन करती थी, आइडियली मुझे 3 या 4 दिन तो डेफिनेटली कैलिब्रेशन के लिए, समटाइम्स एक वीक भी जाता था। जब सर करते थे हमारे, वो 2 या 3 दिन में मैक्सिममली कवर कर लेते थे, उनका 2 दिन में हो जाता था। बट व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग मुझे थोड़ा टाइम रहता था। तो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज द चेक द पंप, कि एग्जैक्टली पंप अगर प्रॉपर है तो जो हम लोग ने वेट किया है वही वेट आता है, वॉल्यूम वही वॉल्यूम आता है। तो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर बिकॉज लेस देन 1 मिनट रह चुका है। सो नेक्स्ट टेस्ट जो भी है तुम लोग का, वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर टेस्ट इन नेक्स्ट लेक्चर, that is calibration of
वेवलेंथ डिटेक्टर, इट इज अ पम्प के बाद वी विल सी द डिटेक्टर, बिकॉज कॉलम का हम लोग नहीं करते, कॉलम का आउटसोर्स करते हैं. So how exactly we will check the detector का calibration we will see in the next lecture. ठीक है? So I hope nobody is having any doubt with